Thank you, Deepak sir. So it is a pleasure today to have our resource person as Dr. Santosh Patel sir. And today's lecture will be in English, Hindi and Bhojpuri as considered. So I would like to introduce you all to Dr. Santosh Patel sir. He is an established Bhojpuri poet, a translator and an academician, and he has degrees of PhD and MPhil in English, and certainly he has masters in English, Hindi, translation studies, Buddhism and Bhojpuri, in which he has a gold medal, which is quite commendable. And as for now, he's an assistant registrar at Delhi Teachers University in New Delhi. He has also published several books in Bhojpuri and Hindi. For instance, I would like to take their names. Shabdon ki chhaaw mein, In the Shadow of Words, Ladai Jari Hai, The Fight Continues, Amoeba aur Anya Kavitaएं, Amoeba and Other Poems, No Clean Chit, Karak Ke Chin, Footprints of Works, Bhor Binusar, According to the Dawn, Adahan Boiling, Chayavad ke Pravartak, originator of Romanticism. As a translator, Dr. Santosh has translated at least 13 textbooks, and some more are forthcoming from Hindi and English into Bhojpuri, under the aegis of erstwhile Ministry of Human Resource Development. Recently, some of his poems have been translated in English. He has received at least 16 awards for his contribution to literature. And for a few of the awards are Padma Shri Ramchandra Manji Smriti Samman, Suraj Pal Chauhan Sahitya Srijan Samman, Fatima Sheikh Award, Shri Prabhunath Singh Samman, Bhojpuri Bhaskar Samman, and many more. So today's lecture is on struggles of Bhikhari Thakur and Bhojpuri, and we will be having this lecture as stated in Hindi, English and Bhojpuri. Over to you, sir, and we are honored to listen to you. Thank you very much, Ragini. You have given a very elaborate introduction. And I also very thankful to Deepak who has given the stage for me to deliver on my favorite topic. Actually, Bhikhari Thakur is pioneer of Bhojpuri literature, and his contribution, vital contribution for the propagation of Bhojpuri language, literature, and the culture is I cannot express in the words. It is beyond expression, because a one-man army, you can say, for all of you, I want to give that he became legend in his lifetime. Hari Thakur, जिनको महापंडित राहुल संस्कृताएं अनगढ़ हीरा कहते हैं. अनगढ़ हीरा मतलब कि ऐसे डायमंड जिसको अभी गढ़ना बाकी है. एंड भिखारी ठाकुर और भोजपुरी का आपस में एक अनुनाद से संबंध है. भिखारी ठाकुर क्यों इतने सिग्निफिकेंट हो जाते हैं? वाई इज सिग्निफिकेंट? इसको हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा. उसको थोड़ा थ्योरी में लेके भी समझना पड़ेगा, उनके योगदान को भी लेके समझना पड़ेगा, और उनका जो संघर्ष है उस संघर्ष को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें जानना जरूरी है कि आखिर का स्ट्रगल क्या था, भिखारी ठाकुर का स्ट्रगल क्या था. भिखारी ठाकुर वो ठाकुर नहीं है जिस ठाकुर की चर्चा हम देखा, या ठाकुर वो हम लोग जो ठाकुर समझते हैं, जो फ्रीडलिज्म के ठाकुर नहीं है. वो एक नई जाति के, हजाम जाति के, और वो एक छोटे से परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं. आपको पता है कि जो हमारे समाज का जो कास्ट का या जो कास्ट है, जो है, या कास्ट का पूरा जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, उसमें वो सबसे लोएस्ट रैंक पे आते हैं. तो उस समाज से निकल के भिखारी ठाकुर आते हैं. तो हम लोग ये बात बड़े शिद्दत से समझ सकते हैं कि वो आदमी का स्ट्रगल कितना. स्ट्रगल इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि
वो समाज संघर्षशील समाज है जो नाई समाज है। और समाज में उसका अस्तित्व क्या है, ये है कि वो जमींदारों के घर में या और भी लोगों के लिए दाढ़ी बनाए, शादी में पंडितों के साथ सामान जुटाए, सारे सामान को जुटा कर रख दे तो पंडित जी जो है वो पूजा पाठ कराएंगे, शादी करना परिवार जो है वहाँ पे वो नाई समाज जो है। और उससे ज्यादा तकलीफ दे के आप देख सकते हैं कि एक समय था जिस समय में नाई को संदेशवाहक माना जाता था, यानी कि वो मालिक के घर से, जिस मालिक के घर से वो जुड़ा होता था, उसके घर से शादी संबंध के कार्ड लेके, जिसको से इन्विटेशन कार्ड, वो जनरली एक जगह से दूसरे गांव जाते और वो पैदल जाते थे। उस समय देयर वाज नो एनी मीन, कोई कम्युनिकेशन बस या ऐसा मोटरसाइकिल था नहीं, और गरीब लोग से पैदल जाते थे 10-10 25-25 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर पैदल। और कभी कभी ये होता था, आप अमानवीयता का हद देखिए कि कभी कभी ये होता था कि जब एक जगह से वो कार्ड लेके दूसरे जगह जाते थे तो कोई को पानी तक नहीं। ये सिचुएशन है, मतलब हमारे समाज में इतनी अमानवता और इतनी लोगों की जो सोच है छोटी थी, और उसमें वो व्यक्ति संघर्ष करते हैं। वो भिखारी ठाकुर आते हैं और समाज को जगाने का काम करते हैं। का जो संघर्ष है वो छोटा नहीं है, बहुत बहुआयामी है, मल्टीफेरियस है, मल्टीडायमेंशनल। आप जब उनके अलग नाटकों को देखेंगे, उनके जो 12 नाटक है, वैसे तो हम लोग अगर देखा जाए तो उनके 12 नाटकों में के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीजों की रचना की। अगर हम उनका बारी बारी से एनालिसिस करेंगे तो उनके संघर्ष को उनके नाटकों में ही हम देख सकते हैं। 29 रचनाएं हमारे पास उपलब्ध है। वो भी रचनाएं इसलिए उपलब्ध हो पाई है बिकॉज उनके टाइम में उनके लिखे नाटकों को कोई प्रकाशित तक नहीं करता था। जो उस समय के जो रचना, यहाँ तक कि भोजपुरी का भी जो यूनिट था, तब हम समझ रहे हैं कि भोजपुरी का भी जो यूनिट है वो भी भिखारी ठाकुर को नचनिया लौंडा कहता था। और हम देखें जैसे कि कई बार हम जब एंथ्रोपोलॉजी के एक बड़े विद्वान हैं, उनका नाम है रॉबर्ट लॉर्ड मैक्सिको के, वो कहते थे कि समाज में 2 परंपराएं हैं, एक लिटिल ट्रेडिशन है और एक ग्रेट ट्रेडिशन। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि भिखारी ठाकुर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है लिटिल ट्रेडिशन, और लिटिल ट्रेडिशन जो है वो इतना बड़ा भाग है। लिटिल ट्रेडिशन का जो कंट्रीब्यूशन है समाज में वो एक बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा चंक। और एक तरह से देखा जाए, जैसे हम एलीट को देखते हैं या जैसे एंटोनियो ग्राम्सी जो है वो समाज को 2 तरह से देखते हैं, एलीट और सबॉल्टर्न में। उस हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि भिखारी ठाकुर वो सबॉल्टर्न के रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हम उसी तरह जब रेमंड विलियम की बात करें तो वो हाई कल्चर नहीं, वो लो कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव है। और एक तरह से देखा जाए तो रोला बाग के शब्दों में ये पॉपुलर कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव राइटर है। तो भिखारी ठाकुर को अलग अलग ढंग से लोगों ने बाद में इवेलुएट किया, लेकिन जब अपने समय में वो नाटक कर रहे थे या नाटकों से जब जुड़ रहे थे और नाटक का परफॉर्मेंस कर रहे थे, मैं धीरे धीरे एक एक चीज को बताऊंगा। तो आप ये समझिए कि कई जगह नाटकों में मैं संजीव को DNU में सुन रहा था, जब एक किताब है, बड़े कहानीकार है, सूत्रधार है, जो कि भिखारी ठाकुर को पूरे रिसर्च के साथ लिखा गया। उसमें वो उसकी बात ही बोल रहे थे। DNU में एक बार प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ पे वो प्रोग्राम कराते रहते हैं। उस समय वो भी थे आदरणीय वो लाइव थे, तो वही अध्यक्षता कर रहे थे। तो संजीव बता रहे थे कि जब धनबाद में, अब मैं विषय पे आ रहा हूँ कि
धनबाद में एक बार वो नाटक कर रहे थे, उनका एक नाटक है बेटी बेचवा। अब उस नाटक का थोड़ा सा रूप बदल के उसका नाम रख दिया गया। तो जब ये नाटक कर रहे थे तो आपको जानना चाहिए कि वहां पे लोग को मारने के लिए आ गए। क्यों मारने के लिए आ गए? तो कोयलरी के अंदर, ये धनबाद की बात है, कोयलरी के अंदर वहां पे फ्यूडलिज्म बहुत चरम पे है। तो वहां क्या था, छोटी छोटी लड़कियों को उस समय शादी की जाती थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हैदराबाद में कि वो आते से पहले बड़े बड़े शेख आते थे, छोटी बच्चियों को शादी करते थे और थोड़ा बच्ची वो देख के उनका रोकरा देख के फिर वो उनको तलाक भी दे देते थे। लेकिन वो केवल छोटी बच्चियों से शादी क्यों करते थे? आप सब व्यस्त हैं समझ। तो उस समय भी देखिए, इनका जो टाइम है भिखारी ठाकुर के लेखन का, वो टाइम है 1919 से लेके 1965। तो उस टाइम में ये नाटक लिख रहे हैं, बहुत साल नहीं हुआ, अभी 100 साल के ही भीतर की बात है। तो उस समय ये नाटक लिख रहे थे कि भोजपुरी समाज में उन दिनों गरीब परिवारों के, वंचित परिवारों की बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को सामंतवादी परिवार के बूढ़े लोग अपने एक तरह से अपने आवास के लिए शादी करते थे, खरीद के लाते थे, क्योंकि वो गरीब लोग थे, उनके पास खाने पीने का भी नहीं था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी लड़कियों को अनमेल शादी करते थे, बेमेल शादी करते थे। तो लड़कियां जो है जल्दी विधवा भी हो जाती थी। उस विधवा वियोग पे भी भिखारी ठाकुर ने कलम चलाया है। तो वो बता रहे थे कि जब धनबाद में ये नाटक बना तो जो फेडरल टाइप के लोग थे, उन्होंने नाटक करने वाले को मारना शुरू किया, तो ये लोग भाग गए सारे। तो कहीं कहीं इनको ऐसा भी होता था। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि जब ये नाटक करते थे तो कई लोगों ने देखा और जाके मंदिर में कसम खाया कि आज से हम अपने बच्चों की शादी अनमेल शादी नहीं करेंगे, बच्चियों को ऐसे पैसा लेके और ऐसे आदमी से, बुढ़े आदमी से शादी नहीं करेंगे, छोटी छोटी बच्चियों को। और उसका एक तरह से देखा जाए तो उनके नाटक का यही सिग्निफिकेंस था कि लोगों ने उस नाटक से सीख ली कि हमें ना तो बेटी बेचना है, ना अनमेल शादी में भाग लेना है। ये बेटी बेचवा नाटक की मैं बात कर रहा हूँ। आगे और जैसे जैसे रागिनी अपना सवाल करेंगे मैं बताता चल। शुक्रिया। रागिनी? सर जी सर। जी जी सर, there was some technical error so I couldn't hear you. What did you say? नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आगे बात को बढ़ाया जाए तो आप बताएंगे, तो आपका जो सवाल होगा फिर आगे मैं पढ़ूंगा। जी सर, प्लीज कंटिन्यू बिकॉज आई एम लिसनिंग टू यू। तो जो भी होगा क्वेश्चन आंसर राउंड में वी विल क्लैरिफाई आवर डाउट्स। ओके, राइट। हाँ, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो भिखारी ठाकुर ने कि उनकी किताबें उपलब्ध हैं और ये भी इसलिए उपलब्ध हो पाई कि उनकी जो नाटक और कीर्तन भजन थे वो सब जो है उन्होंने कलकत्ता में जाने के बाद छोटे छोटे रूप में छपवाया, तो वितरित किया, जिसके कारण चीजें बच गई। और फिर बाद में चल के वीरेंद्र नारायण यादव जी अभी MLC हैं और वो छपरा विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। और जब वो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना के सेक्रेटरी बने तो या अध्यक्ष बने, तो उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया कि भिखारी ठाकुर की जितनी भी रचनाएं हैं जो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और मतलब बुरे हाल में था, तो उन सबको उन्होंने एक्युमुलेट किया एंड उसके बाद उन्होंने वहां से एक पुस्तक की रचना की। इसका नाम है भिखारी ठाकुर रचनावली, जो कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से प्रकाशित है। इसमें उन्होंने बहुत कोशिश की कि जितनी उनकी रचनाएं हैं उन सारी रचनाओं को एकत्रित कर दिया जाए और करने में सफल। तो उनकी रचनाओं में हम देखते हैं विदेशिया, जो माइग्रेशन की तकलीफ, माइग्रेशन के जो रेसिप्रोकल्स हैं उसके ऊपर आधारित है।
भाई विरोध, बेटी वियोग, विधवा विलाप, कलयुग प्रेम, राधे श्याम बहार, गंगा स्नान, पुत्रवध, कबर खिचोर, विरहा बहार, नकल भांड और नेटुआ ननद हो जाए। उसी तरह हम देखते हैं कि उनका भजन कीर्तन है, शिव विवाह, भजन कीर्तन में राम, रामलीला, भजन कीर्तन में कृष्ण, माता भक्ति, आरती, घोटाला का बयान, चौवर्ण पदवी, नाई बहार, शंकर समाधान, विविध और भिखारी ठाकुर, ये अपने कुछ जो उत्तर रचनाएं हैं सबको एकत्रित करके यहाँ पे रखा गया है। अब भिखारी ठाकुर कैसे, अब हमें देखना है कि भिखारी ठाकुर कैसे प्रासंगिक होते जा रहे हैं। एक समय था जब भिखारी ठाकुर लोग लौंडा नाच है, लौंडा नाच के माध्यम से, क्योंकि ये जो भिखारी ठाकुर नाटक करते थे वो तमाशा के नाम से करते थे और लोग करीब करीब 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से लोग आते थे उनको देखने के लिए। उनकी पूरी नाच मंडली होती थी और ये पूरी नाच मंडली के साथ कहीं जाते थे और ये एक तरह से जब नाटक होता था ओपन मंच में होता था, ये बिल्कुल ओपन मंच में नाटक होता था और वहां पे के टीम के द्वारा पहले कुछ भजन और फिर उसके बाद नाटक किया जाता था। तो भिखारी ठाकुर एक व्यक्ति नहीं थे अपने आप में, संस्था थे। तो एक गीतकार ही नहीं, नाटककार ही नहीं, एक नाट्य निर्देशक नहीं, लोक संगीतकार ही नहीं और एक अभिनेता नहीं। और मैं कहूँ तो मैंने पहले ही आपको कहा कि वो भस्टाइल इंजीनियर थे और अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने सामाजिक चेतना को प्रवाहित करने का काम किया। कैसे प्रवाहित किया, कैसे चेतना को जागरूक किया, इसको हम लोग उनके नाटकों से ही एनालिसिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई नाटककार है या कोई रचनाकार है तो उसके जीवन से अच्छा उसके कंट्रीब्यूशन पे काम करना, समझना बहुत जरूरी है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। उनके कंट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो जब वो छोटी उम्र में थे तो यही नाई का काम करते थे अपने पिता के साथ, थोड़ा पढ़ना लिखना सीखे। फिर क्या था कि उस समय छपरा या बिहार के साइड से लोग दूसरी जगह काम करने जाते थे, कलकत्ता से ओर जाते थे। उन दिनों कलकत्ता से ओर ही माइग्रेशन था। आजकल माइग्रेशन जो है तमिलनाडु से, बीच में माइग्रेशन जो था बिहार से महाराष्ट्र की ओर, लेकिन उस समय क्योंकि कलकत्ता बिहार भी किसी समय में प्रांत होता था बंगाल का, तो लोग ढाका तक जाते थे काम करने। तो ये गए थे मेदिनीपुर। तो आप सबको पता होगा कि जो भारतीय ऋणाता है, तो भारतीय ऋणाता का जो बात है, अगर एक ओर अगर महाराष्ट्र से हम देखते हैं तो दूसरे ओर हम बंगाल में देखते हैं। उस समय सती प्रथा का नाम हो रहा था और उस समय वहाँ जो सांप्रदायिकता है या धार्मिक आडंबर है या शोषण है या जो सामाजिक कर्मकांड है, जातीय भेदभाव है, उस सबके विरुद्ध एक तरह से जो है विनाशा, जो नवजागरण हमारे देश में आता है और उसके बाद शुरू होता है साहित्यिक आंदोलन। तो साहित्यिक आंदोलन में हम जैसे देखते हैं कि भोजपुरी क्षेत्र शुरू से ही विद्रोही स्वभाव कर रहा है। ये कोई मैं जो कह रहा हूँ पूरे शिद्दत के साथ कह रहा हूँ कि आप देखिए कि भोजपुरी क्षेत्र है, सिद्धार्थनगर, जहाँ से भगवान बुद्ध का पूरा वहाँ जन्म होता है। भगवान बुद्ध वहाँ से आते हैं और उनका परिनिर्वाण कुशीनगर तक होता है। तो वो भी हम देखें तो कबीर जो है वो बुद्ध के क्षेत्र से है। वहाँ कबीर के बाद अगर हम देखते हैं तो रैदास के क्षेत्र से, वो भोजपुरी क्षेत्र से है, कबीर भी भोजपुरी क्षेत्र से है। तो वो क्षेत्र ऐसा है जो बाबा जो कबीर है वो अमरदेशवा का कंसेप्ट देते हैं। उस अमर देश में क्या है? अमरदेशवा के कंसेप्ट में यही वर्ण व्यवस्था का प्रकार है, समानता मूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना है। उस अमर देश में कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, उस समर देश में सब लोग एक समान एक भाव से रहेंगे। और यही कंसेप्ट को रविदास जी महाराज कहते हैं कि बेगमपुरा का जो यूटोपिया है वो क्रिएट करते हैं।
तो वो भोजपुरी समाज जो बेगमपुरा है, बेगम, जहाँ कोई गम नहीं, कहाँ कोई भेदभाव नहीं, तो वो जो एक तो बंगाल में जो निराशा हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे भोजपुर क्षेत्र में भी निराशा हो रही है। और उस निराशा का रेसिप्रोकल आप हीरा डोम तक देख सकते हैं। जब उद्घोषक कभी हीरा डोम अछूत के शिकायत लिखते हैं, तो आप समझिए कि एक पूरी जो आज हम लोग दलित आइडियोलॉजी पे बात करते हैं, तो सारी दलित आइडियोलॉजी की शिखर के जो लोग हैं और भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं, वो बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास हो और हीरा डोम हो, या फिर आप आइए तो भिखारी ठाकुर की रचनाओं में खुद आप सहजता से देख सकते हैं। कहा जाता है, कई बार विद्वान लिखते हैं कि भाई भिखारी ठाकुर जब बंगाल की ओर जाते हैं तो वहाँ उनको जो है राजा राम मोहन राय के विचारों से अवगत होते हैं, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद से, इन सब लोगों के विचारों को ये बौद्धिक समझ है। लेकिन अगर हम बौद्धिक समझ से ये चीज गढ़ी जाती है, ये आपको भी पता है। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि जो दर्द को महसूस किया है, जो अनुभव किया, और उस अनुभव जनित जो उसका लेखन है, उसमें वही सिंपैथी और एम्पैथी वाली बात होती है कि वो आदमी भोग रहा है, भिखारी ठाकुर भोग रहे, पूरे दिन मेहनत करने के बाद उन्हें मिलता क्या है, तो वो बेचारे कमाई करने के लिए तो उनको जाना चाहिए। और भिखारी ठाकुर जब कमाई करने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि गांव में तो आपको पता है कि जो सामंती व्यवस्था है वो 2 किलो चावल है, 1 किलो चावल 1 किलो गेहूं दे देगा, पूरे दिन का जो है मजदूरी उसको कहते थे, तो उस मजदूरी से तो पूरा परिवार चलता नहीं। तो वो वहां को जाना पड़ा, और वहां जाने के बाद जब चीजें समझ में आती हैं तो भिखारी ठाकुर का जो कवित्व है, क्योंकि मैं कवित्व इसलिए कहता हूँ कि भिखारी ठाकुर की रचनाएं जो उसमें 93% रचना वो कविताओं के माध्यम से करते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 93%, 100 में उनकी जो रचनाएं हैं वो 93% जो रचनाएं हैं वो पूरा जो है कविताओं में है, यानी पोएटिक है। अभी भोजपुरी क्षेत्र की निराशा पे बात कर रहे थे, मैं इसके ऊपर भी कभी एक बार बात करूंगा, लेकिन अभी मैं फिर समय कम पड़ जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भिखारी ठाकुर के जो नाटक है, उस नाटक को समझना जरूरी। पहला नाटक अगर हम लोग विदेशिया को, क्यों भिखारी ठाकुर का संघर्ष देखे, संघर्ष का एक पड़ाव आता है यहाँ पे, सबसे पहले माइग्रेशन। ये खुद जाते हैं मेदिनीपुर, वहाँ पे ये दाढ़ी बनाते हैं, वहाँ अपना जो नाई का काम करते हैं, धीरे धीरे आपको रामलीला देखते हैं, नाटक देखते हैं, वहाँ के जो पॉप सॉन्ग है, वहाँ के जो स्टेज पे प्रोग्राम होता है, वो सब जा जाके देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और फिर अपना टीम फॉर्मेशन करते हैं। तो वो भी उस तरह से केवल मनोरंजन का काम नहीं कर रहे, अपने नाटकों से एक संदेश दे रहे हैं। सबसे पहला संदेश वो एक विदेशी नाटक से देख रहे हैं। उस विदेशी नाटक में केवल वो इस बात को नहीं बतला रहे हैं कि एक व्यक्ति केवल काम करने के लिए जा रहा है कलकत्ता, वो उस औरत के दर्द को ही बता रहे हैं, पीछे जो वो उसको छोड़ के गया है, वो कैसे अपने जीवन को काट रही है, कितने दर्द में, कितने तकलीफ में। तो जो पलायन का दर्द है, उस पलायन से दोनों स्त्री और पुरुष कैसे प्रभावित होते हैं, उसकी विदेशिया जो है, एक व्यक्ति है जो बाहर काम करने जाता है, उसी को विदेशिया कहते हैं। और विदेशिया के पास उनकी पत्नी एक व्यक्ति को संवाद देने के लिए भेजती है, वो बटोही है। बटोही मतलब मैसेंजर। वो ही इज गोइंग टू एट द विदेशिया, वो इज वर्किंग एज ए लेबर इन कलकत्ता, और उसकी वाइफ कहती है कि भाई ये संदेश जाके दे दो कि हम लोग कितने कष्ट में, तकलीफ में। तो उन्होंने इस माध्यम से माइग्रेशन के जो फॉर्म्स हैं, जो पुल माइग्रेशन है या पुश माइग्रेशन है, दोनों के ऊपर प्रकाश डाला है। और साथ में इस पलायन से, माइग्रेशन से जो महिलाएं हैं वो कैसे अफेक्ट हो रही हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। तो विदेशिया नाटक में
और साथ ही साथ अगर आदमी बाहर जाता है, भिखारी ठाकुर चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। उसका विदेशी जाता है, उसका पति जा रहा है, जो एक पति पत्नी है, तो पत्नी शादी होके आती है, थोड़े दिन रहती है, तब तक वो उसका पति कहता है कि मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए कलकत्ता, तो जाता है और इधर पत्नी रह जाती है। वो वियोग में रहती है क्योंकि बहुत दिन हो जाता है। तो पति भी जब कलकत्ता जाता है तो अपनी पत्नी को भूल के वहां एक और शादी रच जाती है। इस चीज को भी बता रहा है कि पुरुष जो है अपनी पत्नी से दूर जा रहा है, लेकिन एक दूसरी स्त्री रख लेता है, लेकिन अपने घर में जिस स्त्री को रखा है उसके दर्द को नहीं, तो उस दर्द को भिखारी ठाकुर उस दर्द को हमारे सामने लेके आते हैं। उनका एक संघर्ष जो है, उनका ये जो एक्सपेक्ट है महिलाओं के प्रति, महिलाओं को उस तकलीफ को, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पर काया प्रवेश करते हैं और उस एक महिला के पूरी तकलीफ को उस महिला के जिसका पति विदेश कमा रहा है तो वो जैसे वो अपने वियोग को महसूस करे, बड़ी संजीवनी और संवेदनात्मक रूप से अब तक लाते हैं। और फिर वो पुरुष जो कमाने के लिए जा रहा है, वो वहां जाके वो क्या करता है, उसके चरित्र किस तरह से पतन होता है, बंगाली से शादी कर लेता है, उसके भी बच्चे होते हैं। बाद में जब बुद्धि आती है फिर वहां से वो लौट के घर आता है। तो बात सुखान, लेकिन भिखारी ठाकुर सुखान नाटक में सारे दुख को इतने ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं कि सुखान होते हुए भी विदेशिया नाटक हमारे दिमाग में पूरे समाज के महिलाओं के जो इस तरह की स्थितियों में है उसकी पूरी व्यथा को, कथा को कहते हैं। वैसे जब हम एक और नाटक है हम देखते हैं गबर खिचूर, मैं 2-3 नाटकों पे बात करूंगा, नाटक तो बहुत सारे हैं मुझे, तो उनका एक गबर खिचूर नाटक है। आज जब हम इस जमाने में सरोगेट मदर की बात करते हैं कि भाई एक आदमी दूसरे आदमी का भ्रूण किसी और महिला के गर्भ में रख के और अपना बच्चा ये करना, जैसे शाहरुख खान का भी तीसरा बच्चा हुआ है, बात और भी लोग हुए होंगे, क्योंकि ये लोग बड़े सेलिब्रिटी हैं तो सामने आए। तो उस समय ये बात है कि गर्भ पे किसका अधिकार, माँ का या किसका? अब ये देखिए आप कि ये इतना नाटक, मतलब महिलाओं के आज जो फेमिनिज्म की लोग बात करते हैं, या सिमोन दे बोवार जो है फेमिनिज्म की जो कॉन्सेप्ट को गढ़ रही थी, तो और भी बहुत सारे विद्वान है जो नारीवादी स्त्रीवादी, मैंने वो गीता सेठी की किताब को पढ़ा था तो कॉन्सेप्ट को बहुत कंसाइजली लिखा हुआ था। तो भिखारी ठाकुर कहीं पढ़े लिखे नहीं थे, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं थे, वो समाज की यूनिवर्सिटी को पढ़ रहे थे, वो लोगों के तकलीफ को पढ़ रहे थे, लोगों के समाज में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं को, क्योंकि वो नहीं जाती थे और हर घर में उनका एंट्री होता था, आपको पता ही होता, तो एंट्री होती थी तो महिलाओं से जुड़ पाते थे। एक महिला के दर्द को दूसरी महिला को जाके बताना, अगर कोई बेटी है किसी दूसरे जगह शादी हुई है तो माँ संदेश भेजती थी, तो लेके जाते थे और फिर वो लड़की अपने सारी बातें दुख तकलीफ सब कुछ अपनी माँ को बतलाती, उनको बतलाते थे भिखारी ठाकुर, वो आके क्योंकि उस समय कोई टेलीफोन नहीं था, अभी तो मोबाइल है, अभी तो खाना भी हम बनाते हैं या कोई लड़की या बेटी या माँ या आपस में बात भी करते हैं तो अब नमक का भी मात्रा पूछ लेते हैं। पहले तो ऐसा था नहीं, संभव नहीं था, और हमारा जो बिहार का पूरी क्षेत्र को बहुत क्षेत्र था, वहाँ तो ये और गरीब लोगों में तो खाने कमाने के लिए जमीन नहीं, और ये सब जो है 5 टेलीग्राम फिर भी वो व्यक्ति सब लोगों की बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद जाके उसकी माँ को बताते हैं, और ये अनुभव उनकी माँ की बात को बेटी को बताते हैं। ये सारे अनुभवों को वो एक्युमुलेट करते हैं और उसको एक जो है साहित्यिक रूप देते हैं, तो साहित्यिक रूप देके और नाटकों में उसको परिणत करते हैं, और नाटकों में परिणत करने के बाद वो हमारे सामने अपने कलाकारों के साथ वो पहुंच जाते हैं और फिर हमें रियलाइज कराते हैं
देखो ये चीज हो रहा है, हमें इससे बचना है। यहाँ इस नाटक में यही माइग्रेशन की तकलीफ फिर है कि एक आदमी शादी करता है और चला जाता है बाहर, उसकी पत्नी रह जाती है घर, उसकी पत्नी को किसी से प्रेम हो जाता है, प्रेम हो जाने के बाद उसे बच्चा हो जाने के बाद उसका पति वापस आ रहा है, पति वापस आ रहा है तो कह रहा है ये कौन है, बोला ये बच्चा है। किसका बच्चा है? तो बोला मेरा बच्चा है। उसकी बीवी बोली मेरा बच्चा है। तो मेरा बच्चा है ये कैसे होगा? तब तक जिसका बच्चा है वो भी आ जाता है। अब ये फैसला शुरू हो जाता है बच्चा। अब एक उसमें भी होशियार आदमी आता है, बोला ठीक है बच्चा को हम 2 भाग में काट के आधा इसको दे देते हैं। अब माँ का ममता जगता है, और मैंने मैं ये बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये पूरा नाटक है। तो माँ का ममता जगता है, कहता है कि ना तुम्हारे लिए है बच्चा ना तुम्हारे लिए, दोनों पुरुषों को नकार देती है और कहती है चूंकि मैंने जन्म दिया है तो मेरा सबसे ज्यादा बड़ा अधिकार है बच्चे को। तो आप ये देखिए कि जब ये नाटक गबर निचोड़ लिख रहे थे भिखारी ठाकुर, तो उसी समय में ब्रेक जो थे, आप सबको पता होगा ऐसे के बहुत बड़े नाटक होता है उस समय के जो हिटलर के खिलाफ वो कविताएं और नाटक, तो उनका एक नाटक था डफ ऑपरेशन सर्किल। डफ ऑपरेशन सर्किल में भी ऐसे ही है, एक गोला बना दिया जाता है चौक से, उसी के अंदर में उसको जो है बच्चे को रख दिया जाता है और दोनों उसको कहते हैं बच्चा इधर जाएगा या उधर जाएगा, जिससे हो जाएगा उसका हो जाएगा। तो यहाँ इसी प्रकार हम देखते हैं, और यहाँ भी भिखारी ठाकुर लेकिन भिखारी ठाकुर का नाटक उनसे ज्यादा सशक्त है। इसलिए सशक्त है कि इसमें महिला ओपनली आती है, ताकत को आप समझिए, और कहती है कि घर पे महिला का पहले अधिकार। तो ये गबर बिछोड़ नाटक भी है, क्रक्स है, और भिखारी ठाकुर का ये मैसेज है। तो बड़े बड़े फेमिनिस्ट लोगों ने आज तक किताब के ऊपर बात नहीं की और चर्चा भी नहीं की। तो इस नाटक पे चर्चा होनी चाहिए और एकेडमी के रेना में, क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे पहले एकेडमी के रेना में चंद्रशेखर ने विदेशिया और पॉपुलर कल्चर के ऊपर एमफिल किया, और एमफिल करने के बाद धीरे धीरे इससे जितेंद्र यादव और बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू किया। तो आज संतोष तिवारी भी मद्रास से पीएचडी कर रहे हैं, और अब मुझे बड़े गर्व के साथ कहना होता है कि हमारे मित्र भी हैं दीपक कश्यप जी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सर, उन्होंने भोजपुरी साहित्य को, समाज को, संस्कृति को बड़ी बारीकी से पढ़ा, एक सोशल साइंटिस्ट के रूप, और एक बहुत बड़ा काम लेके हमको आ रहे हैं। और ये हम भोजपुरी भाषी लोग उनके प्रति हमेशा जो है कृतज्ञ रहेंगे कि भिखारी ठाकुर की सारी रचनावली को बात करती, और आने वाले दिनों में दीपक जी के वाइटल कंट्रीब्यूशन को, इसमें बड़े का जो योगदान है उसको हम देखेंगे और सराहेंगे और सम्मानित भी करेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं है। खुद आप बात कर रहे हैं वो केवल भारत से बाहर तक जाएगा, लोग सराहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है। फिर मैं एक नाटक और भी नाटक पर चर्चा करना चाहता हूँ, जैसे विदेशिया का प्रयास और जो कहते हैं। फिर एक इनका भजन है, बुढ़शाला का बयान। बुढ़शाला मतलब होता है बूढ़ा, बूढ़ मतलब बूढ़ा, साला मतलब मकान, बयान मतलब आप क्या कर सकते हो तो बुढ़शाला का बयान क्या है, ये आपको मैं बताऊं तो ओल्ड एज होम का कंसेप्ट है महानगरों में, अब तो छोटे छोटे शहरों में ओल्ड एज होम के, यानी जो बुजुर्ग है, जिस विमर्श की हम लोग बात करते हैं, बुजुर्ग विमर्श आजकल एक डिस्कोर्स का हिस्सा हो गया है। तो बुजुर्ग विमर्श में हम देखते हैं कि आज हमारे परिवारों में न्यूक्लियर सिस्टम चल रहा है। न्यूक्लियर सिस्टम मतलब कि हम तो हमारे, उसके बाद किसी से कोई लेना,
या एक और सिस्टम हो गया है कि बच्चे तो पढ़ा रहे हैं बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे विदेश जाते हैं और माता पिता घर में रहते हैं। तो माता पिता घर में रह जाते हैं तो कोई उनको देख रेख करने वाला नहीं। कुछ और भी स्थितियां विकट है जो कि भोजपुरी क्षेत्र में हरे ठाकुर लिखते हैं और भी क्षेत्र में लोग लिख रहे होंगे। तो उस क्षेत्र को उन्होंने गांव में फिर से बारीकी से देखा कि कैसे बुजुर्गों के साथ जो उपेक्षा का व्यवहार है, कैसे उनकी उपेक्षा की जाती है, कैसे उनकी अवहेलना होती है, कैसे उनको बेइज्जत किया जाता है, कहीं मारा पीटा जाता है गाँव में। और जो वंचित वर्ग का जो है जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ और भी दशा दुर्दशा। भिखारी ठाकुर कहते हैं कि भाई ऐसा करो, एक बुजुर्ग लोगों के लिए जो है एक घर बना दो नदी के किनारे, गांव के बाहर नदी के किनारे, क्योंकि वो नदी के आसपास दियारा में रहते थे। दियारा का क्षेत्र गंगा का जो है वो क्षेत्र है जिसको नदी छोड़ देती है, तो वो जो जगह होता है पूरा दियारा कहलाता है। तो उस छाड़न के जगह पे लोग बसते हैं क्योंकि वो बड़ा फर्टाइल लैंड होता है, तो वहां पे लोग रहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करो कि बुजुर्गों के लिए एक मकान बना दिया जाए गांव वाले सहयोग करके, और घर में बूढ़े लोग नहीं अगर बर्दाश्त हो रहे हैं उस बूढ़े लोगों के लिए उसी गौशाला में तो रख दिया जाए। वहां वो अपना गांव के लोग मैनेज करेंगे कैसे उनको खिलाना है पिलाना है। और वो चूंकि टॉयलेट समय होता नहीं था तो वो कह रहे थे कि वो जाके नदी के आसपास अपना हाथ धोआ लेंगे, अपना नित्य क्या कर लेंगे। तो इसलिए वो नदी के किनारे बुरसाला बनाने की वकालत करते हैं। तो वहां पे भिखारी ठाकुर बुरसाला के बयान में ओल्ड एज होम का पूरा डिस्कोर्स लेके आते हैं। अब आप सोचिए कि 1950 के आसपास सिमोन द वेवर पूरा ये एक तरह से रच रही थी कि भाई ओल्ड एज होम का पूरा डिस्कोर्स का जो अवधारणा क्या होगा, उसका पूरा थियरी क्या होगा, और लोग वो भी लिख रहे थे। लेकिन उस समय सिमोन का मुझे पूरा याद है। तो वो डिस्कोर्स एक, अब बताइए, वो फ्रेंच में लिख रहे थे और ये भोजपुरी क्षेत्र में। ये कंपैरेटिव स्टडी में इस चीज को बड़ा आसान किया है कि हम लोग को एक सोच देखा, ये चीज बतलाने का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी से यही खोज पाते हैं कि मनुष्य जो सोचता है दुनिया के एक भाग क्या दूसरे भाग में ऐसे ही सोचता है। तो कंपैरेटिव स्टडी ने ये एस्टेब्लिश किया, यस, अगर हम ये भोजपुरी क्षेत्र में भिखारी ठाकुर सोच रहे हैं तो फ्रेंच में भी कोई सोच रहा है, जर्मन के क्षेत्र में भी कोई सोच रहा है, कहीं कोई और सोच रहा है। तो इस तरह से इधर भिखारी ठाकुर ने बुरसाला के बयान में ये सारे कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया और भोजपुरी क्षेत्र में एक किया। तो इस तरह से भिखारी ठाकुर जो है इतने प्रासंगिक होते जाते हैं। और लेकिन क्या एक नाटक है, एक नाई बहार। नाई बहार में आप देखिएगा तो नाई बहार में वो बताते हैं कि जो नाई माने वो हजाम जाति के लोग समाज उनके साथ कैसे भेदभाव होता। पूरा पूजा पाठ में रहते हैं, पूरा शादी कराते हैं, लेकिन जब उनको हिस्सा देना होता है, पर्क देना होता है, मेहनताना देना होता है, तो उनको मेहनताना 100 रुपये अगर मिल रहा है तो पंडित जी 90 रुपये ले जाते हैं और वो पूरे दिन मेहनत करता है, अफसन लगाता है, न्योता बांटता है, सारा काम करना पड़ता है एक लेबर की तरह, लेकिन उसको अंत में 10 रुपये। तो वो जो भेदभाव है पूरे मेहनताना में, उस भेदभाव के खिलाफ भी भिखारी ठाकुर बातचीत करते हैं। इस तरह गंगा स्नान है, गंगा स्नान में बताते हैं। देखिए भिखारी ठाकुर जो है वो समाज को जो स्तर है उस स्तर का बड़ी बारीकी से स्टडी करते हैं, बतला रहे हैं कैसे। और बहू है, बहुएं जो है अपने सास को पीट रही है, सास को मार रही है, उनको सता रही है। लेकिन जब गंगा स्नान हो रहा है तो सतुआ वतुआ बांध के पहुंच जा रही है गंगा जी का स्नान। गंगा स्नान से क्या फायदा? आप घर में मनुष्य का इज्जत नहीं कर रहे, अपने बहू का इज्जत नहीं कर रहे, और आप गंगा स्नान करते जा रहे हैं सब पाप, तो इससे पाप धुल तो नहीं जाता, उससे कटाक्ष करते हैं। ये एक तरह का लाजपूर्ण है। आप इतना मतलब सटार करते हैं भिखारी ठाकुर, इस तरह के ढकोसला, इस पाखंड के खिलाफ
उसने इस नाटक में उन्होंने वर्णन किया है। तो इनके सारे नाटक जो नाटक है वो सारे इस सोशल कॉन्शसनेस के को जन्म देते हैं। कहीं आप के नाटकों में आप डिस्कोर्स भी देखते हैं, कई जगह वो उन्होंने पिछड़ा समाज के वो खुद हैं, जब देखते हैं तो किस तरह से समाज के अंदर की जो तकलीफें हैं, जो समाज के साथ भेदभाव हो रहा है, जो जातीय द्वेष है, उसका वो विरोध भी करते हैं। लेकिन चूंकि वो इतने दबे हुए हैं समाज में, सोशल जो भेदभाव है उससे, कि वो खुल के तो नहीं कर सकते। उस समय वो स्थिति नहीं थी, इतनी माकूल स्थिति नहीं थी कि वो खुल के सारे वो विरोध कर देते। तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने नाटकों में पहले तो गीत भजन गाया, उसके बाद पहले तो वो थोड़ा सा शुगर कोटेड उसको कह सकते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, तो शुगर कोटेड दवाइयां देते हैं, कैप्सूल देते हैं, ताकि या वो शुगर का टैबलेट देते हैं। उस टैबलेट में क्या होता है, थोड़ा मुंह में मीठा लगता है, लेकिन वो होता है दरअसल तीखा ही। तो ये एक तरह से आप मान के चलिए कि भिखारी ठाकुर जो गीत भजन गाते थे, तो चूंकि समाज में ये धर्म की व्यवस्था भी इतनी मजबूत है कि उसको बहुत भेद पाना मुश्किल काम, तो उन्होंने उसको अपना हथियार बनाया। उन्होंने धर्म व्यवस्था को पहले गा के, भजन गा के, चौपाई गा के शुरू करते थे, और फिर ये जो नाटक था वो नाटक की प्रस्तुति करते थे। तो दलित डिस्कोर्स पे भी उनका काम था, नारी विमत पे भी काम था। मैंने आपको बताया कि नारी विमत में अगर देखा जाए तो उनका जो भाई विरोध है, गंगा स्नान है, पुत्र वध है, ये सब नाटक, गबर घिचोर है, विधवा विलाप है, और ताई बहार है, माता भक्ति है, ये सब आप देखेंगे तो इसमें आपको नारी जो नारी विमर्श है उसके बहुत सारे, कम से कम मुझे लगता है कि इनके 75% जो नाटक है उसमें नारी विमर्श मिलेगा। जो ये जो वो डिस्कोर्स है आप उसमें पा सकते हैं। इसी तरह आप जो है, मैंने बताया कि दलित विमर्श भी मिल जाएगा, ओल्ड एज होम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी भिखारी ठाकुर लेके आते हैं। वो पहले व्यक्ति थे मुझे लगता है साहित्य में, इधर भारतीय साहित्य में, जो कि इस कंसेप्ट को लेके हमारे सामने साहित्य में लिखा है। जब तक साहित्य का अध्ययन हम नहीं करते हैं, उसको अलग अलग पैरामीटर पे नहीं, और उसको हम क्राइटेरियन पे, कसौटी पे नहीं करते, तब तक हमें पता नहीं चलता कि साहित्य में किस तरह से रचना की है। उसी तरह भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा जो आज की 25 करोड़ लोगों की भाषा है, बेशक 2011 के लिंग्विस्टिक सर्वे में कहा गया कि भाई 5 करोड़ से ज्यादा की लोगों की भाषा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 30 देशों में उपस्थिति है, और हम बेशक इसको हिंदी के दर्द में, हिंदी के ही परिधि में इसका काउंट करते हैं इसको। लेकिन अगर देखा जाए तो भोजपुरी का अपने स्वतंत्र अस्तित्व है, और भोजपुरी में अगर स्वतंत्र अस्तित्व है तो एस्टेब्लिश करने में, आप भोजपुरी को सम्मानित करने में और उसको स्थापित करने में भिखारी ठाकुर का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, वो होता है। हम सब जो भोजपुरी जो समाज है वो भिखारी ठाकुर का हमेशा उनके संघर्ष से प्रेरणा लेता रहेगा। यही कारण है कि आप देखा होगा कि बहुत बड़े लिंग्विस्टिक है हमारे भाषा साहित्य के उदय नारायण तिवारी, वो देखते हैं कि भिखारी ठाकुर वास्तव में भोजपुरी की जन्म करते हैं। कविताओं में भारतीय भोजपुरी जनता अपने दुख सुख, भलाई बुराई प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण विषयों से लेकर ठेठ तथा टकसाली भोजपुरी में कविता करने में भिखारी ठाकुर ये उदय नारायण तिवारी और साहित्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गुरु थे और वही क्षिति मोहन सेन संस्कृत आयोग के अध्यक्ष होते थे, श्री कुमार चटर्जी। उन्होंने भी भोजपुरी भाषा के अस्तित्व को स्वीकार किया।
भोजपुरी भाषा साहित्य और इतिहास के बड़े विद्वान जिनका नाम था दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह, और भोजपुरी कवि और काव्य में लिखते हैं कि भिखारी ठाकुर नाटक समाज सुधार नाट्य मंडली का गठन किया, जिनके अभिनय आकर्षक तो होते ही थे, लेकिन वो समाज सुधार से ज्यादा जुड़े। ऐसे ही डॉक्टर सुखदेव उपाध्याय जो थे, भोजपुरी साहित्य का इतिहास लिखा और भोजपुरी लोक साहित्य में उनका बहुत काम है। तो देव उपाध्याय ने लिखा, जनता की वस्तु को जनता के सामने जनता के मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करके भिखारी ठाकुर ने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की। तो यह है कि केवल एक व्यक्ति ने, आप ध्यान से सुनिएगा, कोट अनकोट, केवल इस एक व्यक्ति ने भोजपुरी को जितना अधिक प्रचार किया उतना अधिक शायद ही किया। भोजपुरी प्रदेश में भोजपुरी कविता और भोजपुरी नाटक की जो धूम मचा देने वाले इस नाटककार और अभिनेता का भोजपुरी भाषा के प्रचार और प्रसार में अत्यधिक योगदान है। आपको और एक चीज बताता हूँ जो कि जानना बहुत जरूरी है कि भिखारी ठाकुर को एक नाटककार के रूप में किसी भोजपुरी क्षेत्र के विद्वान ने नहीं पहचाना। भोजपुरी क्षेत्र के किसी एक विद्वान ने नहीं पहचाना। सबसे पहले जो जगदीश माथुर है, वो एक बड़े पद पर अधिकारी थे, और उन्होंने जब भिखारी ठाकुर के नाटक को देखा, आश्चर्यचकित हो गए, और फिर उन्होंने उनके ऊपर सबसे पहले अखबार में लिखा, और जब वो लिखे, धीरे धीरे वो जंगल की आग की तरह फैल गया। कैसे भिखारी ठाकुर, एक्चुअली होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की प्रतिभा के ऊपर अगर आप बात नहीं करते, और हमारे क्षेत्र में जिनके हाथ में कलम था, उन्होंने प्रतिभा के साथ अन्याय किया। मैं आपको बहुत शिद्दत और दावे के साथ भिखारी ठाकुर को भी भोजपुरी क्षेत्र के लोगों ने उस तरह से इवेलुएट नहीं किया, उनका मूल्यांकन नहीं किया जितना होना चाहिए। लेकिन जैसे जगदीश चंद्र माथुर ने इनके नाटकों का जो मूल्यांकन किया और बड़े बड़े अखबारों में उसको छापा, के बाद भिखारी ठाकुर के तो लाइन लग गए। कोई मनोरंजन प्रसाद सिन्हा कहते हैं थे, तो कोई भारत की परंपरा के नाटककार करने लगा। बाद में चलते भिखारी ठाकुर को बिहार सरकार ने 1954 में ताम्र पत्र सम्मानित किया। 1964 में सरकारी कला संस्थान भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना से दो गीतकार को अभिनंदन किया गया। कोई उनको अब भारतेंदु कहने लगा, कोई भोजपुरी का शेक्सपियर कहने लगा, कोई उनको राय बहादुर का टाइटल देने लगा, कोई उनको अनगढ़ हीरा कहने लगा। कोई यूं ही नहीं कहा, क्योंकि उनका जो काम है वो काम ही इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें एक पदवी के लिए जो भी लोग उन्हें नवाजते थे वो सटीक बैठता था। अब मैं आप लोगों को के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी देना चाहता हूँ। मानो का इनके नाटकों पे क्या कहना है। इनके नाटकों पे भोजपुरी क्षेत्र में बड़े आलोचक हैं, उनका नाम है प्रोफेसर सत्य। इन्होंने मेरे पीएचडी के हमारे पीएचडी के गाइड भी है। तो वो कहते हैं कि भोजपुरी भाषा साहित्य के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर सामाजिक आंदोलन के अग्रदूत रहा। सौसे संस्था के रूप में कई गई उनकर काम आने वाला पीढ़ी के प्रेरणा प्रदान कर नहीं। अब भिखारी ठाकुर के एक और नाटक की मैं चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि किसी जमाने में ये भिखारी ठाकुर ही थे जो बोले कि भोजपुरी क्षेत्र में नशा मुक्त और पिया नशैल जो है एक नाटक हो, और नशाखोरी से, दारू शराब से परिवार पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे परिवार सफर करता है, कैसे हमारे महिलाएं दुखी होती हैं, कैसे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कैसे परिवार
माने घोर अंधकार में डूब जाता है। तो उसको नाटक या नशे नाटक से उन्होंने डिटेक्ट किया। और वो नाटक मैं कह रहा हूँ कि जब भिखारी ठाकुर का ये जो सपना था उसको बिहार के तत्कालीन साकार करने का काम किया, उन्होंने वहां शराबबंदी की। तो आप ये देखिए कि एक साहित्यकार कितना दूरदर्शी होता है। तो देख रहा था कि शराब का क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, भोजपुरी क्षेत्र में कितना बुरा असर है, इसको बंद होना चाहिए। तो कोई ना कोई बहुत देर ही सही बंद करने का काम किया। और विशेष करके निर्णय से भिखारी ठाकुर जो कहते थे सबसे ज्यादा अगर खुशी हो तो महिलाएं हों। और ये सच साबित हुआ कि भिखारी ठाकुर के इस नाटक का जो रिजल्ट था वो नीतीश कुमार ने पूरा किया। हम देख सकते हैं कि जब केदारनाथ सिंह बहुत बड़े कवि हैं हमारे समय के, तो वो कहते हैं, लिखते हैं हिंदुस्तान के एक पेपर में, भिखारी ठाकुर सच्चे अर्थों में। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि कल एक्चुअली कुछ नाटक के नाम बदल गए। पहले पिया नशैली नाम था, फिर प्रेरणा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब बहुत सारे नाटक बदल गए। जैसे बेटी बेचवा था, उसका नाम बेटी बियो। तो उसी तरह जो आप वो कलयुग का कह रही हैं, तो पहले वो उस नाटक का नाम ही था पिया नशैली। हम लोग बेसिक टेक्स्ट से बात करते हैं, कुछ चीजों में कुछ एकेडमिक थोड़ा बदलाव किया गया ताकि लोगों को समझ में आए। आप ठीक करें। तो भिखारी ठाकुर के नाटकों के ऊपर, उनके कवित्व के ऊपर, जो काव्य परंपरा है उसके ऊपर केदारनाथ सिंह कहते हैं कि वे सच्चे अर्थों में लोक कलाकार थे जो मौलिक परंपरा के भीतर से उभर कर आए थे। और इनके नाटक और गीत हमें लिखित रूप में उपलब्ध है। वह एक सजग कलाकार थे, इसलिए कोरा मनोरंजन का उद्देश्य नहीं था। उनके हर कृति किसी न किसी सामाजिक या कुरीति पर चोट करती थी। और ऐसा करते हुए उसका उसका सबसे धारदार हथियार होता था प्रचार के माध्यम से वो समाज के विशुद्धताओं को, समाज की कुरीतियों को, सामाजिक कुरीतियों को उकेरने का काम करते। तो भिखारी ठाकुर का जो आप कह सकते हैं एलो जो है, एक उनका जो सीमा है वो बहुत विस्तृत है। और हम लोग अगर एक एक नाटक पे बात करेंगे तो कम से कम एक नाटक पे बात करेंगे 1 घंटा का वक्त तो लगेगा ही। तो नाटक बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन नाटक का जो थॉट है, जो नाटक का जो एक तरह से कहा जाए कि जो विषय है वो इतना विस्तार लिए हुए है कि उस पर अगर हम चर्चा करें, विमर्श करें, तो वो नाटक अपने आप में एक तो सीख भी देता है और एक समाज सुधार के लिए हमारे अंदर और चेतना संपन्न ऐसा लगता है। और भिखारी ठाकुर को एक और विद्वान है राजेंद्र प्रसाद सिंह बिहार में, वो कहते हैं भिखारी ठाकुर का जो मूल्यांकन पेश है, जिस पद्धति से उनसे आलोचना की जाती है वो पद्धति है, वो मुझे लगता है उनसे मूल्यांकन बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि जब चंद्रशेखर, वो लिखते हैं कि जब चंद्रशेखर ने इनका मूल्यांकन किया और उनकी परंपरा को आगे को बढ़ाया, तो चंद्रशेखर मूल्यांकन जो करते हैं उसको नवजागरण काल से जोड़ के कहते हैं। लेकिन ये कहते हैं जो अपने राजेंद्र प्रसाद सिंह है, वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है उसको ओबीसी परंपरा से देखना चाहिए, ओबीसी अवधारणा से, ओबीसी की अवधारणा, दलित अवधारणा, नारीवादी अवधारणा से इतर ओबीसी अवधारणा से देखना चाहिए। अभी ओबीसी की अवधारणा हमारे पास अभी खुल के नहीं आई है, तो मैं आज उस अवधारणा पे कैसे मूल्यांकन कर सकता हूँ, या आने वाले वक्त में वही बताएंगे अपना जो राजेंद्र प्रसाद सिंह है। लेकिन जो भी है, हम ये देखते हैं कि जिस तरह से सामाजिक, धार्मिक और नैतिक पतन समाज में हो रहा था, उस समय जिस मनोरंजन ढंग से, अभिनय शैली से भिखारी ठाकुर ने प्रहार किया, वो अद्भुत था।
प्रोफेसर रमाशंकर श्रीवास्तव, आप लोग जानते हैं, गरिमा श्रीवास्तव के पिताजी बहुत मान डॉक्टर रमाशंकर मेरे गुरु भी थे। पूर्वांचल में वो प्रधान संपादक थे और मैं उनका असिस्टेंट था, मैं सहायक संपादक था। तो वो लिखते हैं कि ठाकुर जी अपना मन के पास मनोरंजक ढंग से रखते और जीवन में बुराई के, जीवन में घुसल बुराई के भार के जन समाज के आगे लेके आवत है। उनकर ऐसा साहित्यिक योगदान के भोजपुरी समाज कवई ना जब जब भोजपुरी चेतना के प्रसंग उठी तब भिखारी ठाकुर प्याज। देखिए कितनी बड़ी बात है, पिछले साल कोरोना, पिछले 2 साल पहले कोरोना में इनका देहांत आप काफी वर्ष ये भिखारी ठाकुर पर बहुत इन्होंने लिखा है और की बात अक्षर तो सही है कि जब जब भोजपुरी चेतना की बात होगी तो भिखारी ठाकुर हमारे सामने। तो ये था एक सांस्कृतिक सूत्रधार का के बारे में मेरी जो समझ है, समझ में मैंने बात रखी है। इसमें आप तक जो बात पहुंची है, आप कितना समझ पाए हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अपने अगले समय में जितना हो सके मैं आप बता दिया। और आप लोगों को इससे जुड़े कोई भी प्रश्न शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी और राजनीति जी, आप लोगों ने प्रदान किया। जी सर नमस्ते। दीपक जी जी सर जी। Ragini, are you here? Yes, I'm here, sir. Yeah, you can moderate the question session, please. All right, certainly. Thank you, Deepak, and I'm very thankful to Sir Dr. Santosh Patel, sir. It was indeed an enriching session. We listened to you very keenly. And I would like to first of all summarize a few points which I might which might help people who joined a bit later. That you talked about how Bhikhari Thakur has been a pandit and what his struggle has been, and जो struggle उनका रहा है, जो 20वीं शताब्दी में उन्होंने देखा है, वो कैसे हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, चाहे हम अभी 21वीं सदी में है, कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबाल्टर्न ट्रेडिशन में भी है और उनके जो नाटक हैं वो स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देते हैं। और उन्होंने ये भी, उनकी रचनाएं जो हैं बेशक बहुत ही बुरे हाल में थी, पर किसी तरह जो संघर्ष उनकी रचनाओं ने भी देखा, तो पर फिर भी वो हमारे सामने आज है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी रचनाओं को पढ़ें और समझें, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि हम अभी भी भिखारी ठाकुर से इतना अवगत नहीं है, जो हमारी जनरेशन है या इनफैक्ट जो आगे आने वाली जनरेशन है, हमें उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ एक मनोरंजन का ही विषय नहीं होता है, और जितना भी उन्होंने रंगकर्मी होने के साथ साथ दलित विमर्श को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी, और स्त्रियों के विषय पर जो उन्होंने बात रखी कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, जो बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था वो भी बहुत ज़्यादा, आज भी कुछ ये जगहों पर ये मुद्दे ऐसे रहते हैं जहाँ पे बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं पर कोई उन्हें रोकता नहीं है। तो सर एक मैं जो केदारनाथ सिंह जी ने उन पर लिखी हैं कुछ पंक्तियाँ मैं बताना चाहूँगी कि और अब यह बहस तो चलती रहेगी कि नाच का आज़ादी से रिश्ता क्या है, और अपने राष्ट्रगान की लय में वे ऐसा क्या है, वह ऐसा क्या है जहाँ रात बिरात जाकर टकराती है विदेशिया की लय। तो विदेशिया को लेकर भी जो एक बहुत ही एक बहुत ऐसी शैली है, बहुत ही अच्छी शैली है जिसमें भिखारी ठाकुर ने प्राण फूके हैं। शैली तो शायद किसी और ने
शायद हाईलाइट की होगी, पर उसका जो श्रेय है, उसका जो क्रेडिट है भिखारी ठाकुर जी को ही जाता है कि भाषा और संवेदना, जो भिखारी ठाकुर की रचनाएं हैं, भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर व्यापक जन समुदाय से जो है सीधा संपर्क बनाने का भी काम करती है। और इसी विदेशिया शैली को उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर भी जो प्राण दिए हैं वो बहुत ही नोटिसेबल है। और कहीं ना कहीं आज भी जो विदेशिया की जो शैली है उस पर भी थोड़ा टिप्पणी ये कही जा सकती है कि बेशक उस जमाने में बच्चे बाहर चले जाते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं पेरेंट्स खुद ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर चले जाएं या बाहर से पढ़ाई करें या जो भी है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है अब सभी के सामने आते हैं, देर नहीं तो कभी ना कभी देर सवेर आते हैं। और इस शैली को लेके जो है मेरे ख्याल से आज भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि भारत का समाज अभी भी उस जो डेवलपमेंट हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट का मीनिंग हम यूरोपियन या अमेरिकनाइज्ड डेवलपमेंट है, वो यूरोपियनाइज्ड डेवलपमेंट है। लेकिन भारत का जो एक अपना एग्जिस्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस है, वो उस डेवलपमेंट से हम मैच ना करें तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा मतलब ठीक है, क्योंकि हमारा जमीनी स्तर से जो कनेक्शन है वो कनेक्शन यूरोपियन और अमेरिकन लिटरेचर में है, लेकिन उतना नहीं है जितना रिलेशन हम इंडियन राइटर्स की रचना की लिटरेचर में या उनके लिटरेरी वर्क्स में या साहित्य में हम देखते हैं। तो सर एक मेरा छोटा सा सवाल ये रहेगा कि जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपके लेक्चर में कि जो भिखारी ठाकुर की रचनाओं में जो सबसे पहले स्त्री और दलित विमर्श पर ज्यादा फोकस रहा था, तो आई थिंक क्या हम उन्हें वैसे तो फेमिनिज्म की बात जो है सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ज्यादा फोकस की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, और हम जो है ज्यादातर जो फोकस है फेमिनिस्ट राइटर्स को देते आ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये चर्चा जो है हमारे भारतीय समाज में बहुत पहले से हो रही थी, और लेकिन उसको वो उतना जो दर्जा है आज भी नहीं दिया गया है। मतलब उसको इंटरनेशनल लेवल पे मेरे ख्याल से जो है भिखारी ठाकुर को अनफॉर्चुनेटली नहीं कोई जानते होंगे, लेकिन आई थिंक डू यू अग्री टू दिस दैट ही वाज अ फेमिनिस्ट राइटर बिफोर इवन इंटरनेशनल फेमिनिस्ट्स हाईलाइटेड दैट देयर शुड बी राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, सुफराज मूवमेंट जो था वो कहीं ना कहीं चलता आ रहा था, लेकिन जो लिटरेचर में या प्रैक्टिकली या जो इंडियन सोसाइटी में जो हम देखते आ रहे हैं फेमिनिज्म को, आई थिंक भिखारी ठाकुर वाज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स who highlighted that feminism is indeed something that we should focus on। कि वो सिर्फ मतलब हवा के स्तर में बात क्या करनी है, मतलब फैशन नहीं है फेमिनिज्म। एंड आई थिंक ही वाज वेरी he keenly highlighted in his work। So do you agree to that? हाँ मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको एक बतलाना चाहूँगा कि भिखारी ठाकुर के जो नाटक है ना मैम, वो सारे नाटक में 75% नाटक ऐसे हैं, 75% जो नाटक हैं जी वो नारी विमर्श को ही समर्पित है, जी, वो नारी विमर्श को ही डेडिकेट किया। उनकी रचनाओं में नारी अनेक अलग अलग रूप में आती है। बालिका के रूप में आती है, जब वो बेटी वियोग और सनद भौजाई वाले नाटक में आते हैं। एक विवाहित नारी के रूप में आते हैं जी, जब वो आई विरोध गंगा स्नान पुत्रवध वियोगनी रूप में आती हैं। वियोगनी रूप में जो विदेशिया में आपको मैंने बतलाया, वियोगनी रूप में वो विधवा विलाप में भी आती हैं। कैसे एक वीडियो का उस समय में क्या स्थिति थी आपको तो पता था। उस समय जो उसके थोड़े ही समय पहले तक सती प्रथा खत्म हुई थी, आपको पता है, जिंदा जो जलाने की प्रथा थी। या फिर उसके बाद जब विधवा हो गई तो बाल काट दो, वो बनारस में काशी में चली जाती थी छोटी छोटी बच्चियां। और उसी समय उधर महाराष्ट्र में सावित्री बाई आती हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां विधवा हो जाती थी, उनकी पाठशालाएं खोलती हैं। आपको पता है सावित्री बाई। तो आप ये देखिए कि जब सावित्री बाई उधर स्कूल खोल रही है ना जी, वही विधवा बच्चियों के लिए छोटी उम्र में हो गई है, नहीं तो मैक्सिमम तो ब्राह्मण की
तो वहाँ पे उनके लिए वो स्कूल खोल रही है, उनको रहने के लिए आश्रय खोल रही है, और इधर भिखारी ठाकुर की चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए, तो साहित्यकार तो साहित्य में ही दर्ज करता है, जो सोशल एक्टिविस्ट है वो सोसाइटी में उस चीज को मूर्त रूप देता है। वो सोशल एक्टिविस्ट है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबा फुले, ये साहित्यकार थे, सोशल साहित्यकार जिनको कहा जाएगा, नाटक कर्मी थे। तो माता के रूप में गंगा स्नान था, बेटी वियोग, राधे श्याम बहार, माता भक्ति, नाई बहार, ऐसे नाटकों में प्रेमिका के रूप में भी इनमें आई हैं, जैसे राधे श्याम बहार है, पुत्रवत है, विदेशिया भी है, और गबर भी, जो भी है। तो इनके नाटकों में आप देखिएगा तो बहुत सारे स्त्री को कई रूप में यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया है। साथ में उनकी स्त्रियों की जो समस्याएं थी हर रूप में, उसको भी उन्होंने उल्लेखित करने का काम किया है। मैंने तो आपको पहले बताया कि किसी विद्वान से 2 दिन पहले जेएनयू में बात हो रही, तो बोले कि भाई भोजपुरी तो हिंदी है। मैं बोला बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं आप, पढ़ाते हैं, आप विद्वान आदमी हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपने क्या भोजपुरी पढ़ा हिंदी, बताइए। बोले नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं। तो मैं तो बोला आप तो यही कह रहे हैं ना कि मैं आपके घर का हिस्सा हूँ, लेकिन आपको कुछ जगह नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि आप हिंदी के अवयव हैं, लेकिन आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप खुद नहीं पढ़े हैं भोजपुरी के बारे में और कह रहे हैं कि हिंदी की जद में है। मैं मान लिया हिंदी के जद में हूँ, तो फिर आप हिंदी में क्या पढ़ा? एक तो भिखारी ठाकुर के नाटक भी आप नहीं जानते हैं। तो बेचारे उनका मुंह खुल गया। मैं बोला तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीजों पे आप बात करें। आप एकेडमिक एरेना में बात की। पहली बार चंद्रशेखर ये विदेशिया नाटक पॉपुलर कल्चर को लेके आके जेएनयू में बात किया और किताब लिखा। आज तो मुन्ना पांडे भी पीएचडी किया इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से, या जितेंद्र यादव ने भी किया। और आप जो विदेशिया का बात कर रहे थी, एक चीज मैं आपको जोड़ना चाहता था राजनी जी। ये देखिए माइग्रेशन 2 तरह का, एक फुल माइग्रेशन, एक पुश माइग्रेशन। तो फुल माइग्रेशन जो है वो लोग जो आजकल विदेश जाते हैं वो वहाँ का विदेश खींचता है। और हमारा जो माइग्रेशन से बात कर रहे थे भिखारी ठाकुर, वो पुश माइग्रेशन। जो जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ गंगा जी का बाढ़ आता था, और गंगा जी का बाढ़ आता था तो गांव का गांव डूब जाता था, रोजी रोटी को दिक्कत, खाने के लिए दिक्कत। तो वो वहाँ तो पुश माइग्रेशन था, वहां से तो जाना ही था कहीं काम। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके घर में रोटी नहीं आती। अभी क्या है, हम जाते हैं, अब कहने के लिए तो आज भी लोग कहते हैं भाई बिहार से माइग्रेशन होता है। बिल्कुल बिहार से माइग्रेशन होता है। 1820 से लेकर 1934 तक पूरे गिरमिटिया लोग गए, पूरे जहाज भर मॉरिशस गए, कैरेबियन कंट्री में गए, जमाइका में गए। आज जो आप देश नेपाल को देख रहे हैं वो भी भोजपुरी क्षेत्र से गए, या फिर ये क्रिकेटर्स को देखते हैं जितने ये साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज से खेलते हैं, जिनका हिंदू नाम, वो तो सब गिरमिटिया जो भोजपुरी स्पीकिंग लोगों के ही बच्चे हैं। तो वो उस समय माइग्रेशन में चले गए, वो वहीं रह गए, क्योंकि गरीबी मुक्त स्थिति तो यहाँ भी थी। और उस समय के जो आराकाटी थे, रिक्रूटर्स थे, उनको कहा के ले गए कि चलो वहाँ सोना मिलेगा हमारे के देश में। वो सोना खोजने गए, गरीब भोले भाले आदमी वहीं रह गए। सोचे कि गांव में भी तो घर नहीं है, क्या करना, यहीं रहेगा। लेकिन वहां रह के आज वो वहां से प्रधानमंत्री के अदालत। तो माइग्रेशन, पुश माइग्रेशन से कुछ फायदे भी हैं और कुछ घाटे। तो पुश माइग्रेशन मजबूरी था, वहां से निकल के जाना मजबूरी था, क्योंकि ये समाज का जो सबाल्टर्न है ना, उसके पास ना खेत है, ना खलियान है, ना प्रॉपर्टी है। आपको पता ही है कि आज भी बिहार में जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। भोजपुरी क्षेत्र 80% खेती जो है वो मात्र 15% लोगों के पास, मतलब 80% खेती मात्र 15% लोगों के पास, और 85% लोगों के पास 20% खेती। आज भी आप पता करें, तो ये स्थितियां है वहाँ। इस स्थितियों में ये नाई जाति के लोगों के पास क्या जमीन, वो तो खुद ही गरीब है। ये तो पूरे श्रम का उनको तो श्रम करने का कुछ मिलता भी नहीं था, बेगार थे। जी राज, तो मेरा ये कहना है कि
भिखारी ठाकुर वो सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भिखारी ठाकुर स्त्री विमर्श के नायक है। जी जी सर। और किसी के क्वेश्चन है तो एक बार रागिनी जी आप देख लीजिए, फिर मुझे भी पूछना है लेकिन मैं सबसे लास्ट में करूँगा। हाँ श्योर दीपक सर, मेरे ख्याल से जो मैसेजिंग इन कॉल मैसेजेस में है उनमें कुछ क्वेश्चंस मुझे दिख रहे थे। जी जी तो प्रेरणा जी का सवाल जो था मेरे ख्याल से वो सर आप आंसर कर चुके थे, और उनका क्वेश्चन है कि प्लीज मेंशन द नेम ऑफ द वर्क इन विच ही हैज टॉक्ड अबाउट ओल्ड एज होम और बुद्धशाला गुड़शाला। गुड़शाला की। What is the name of the work? इनका नाम Yes, जी। उसका नाम है बुड़साला के बयान। अच्छा, उसका नाम है बुड़साला का बयान। गुड़शाला का I will I hope I will share in the group. बुड़साला मतलब बुड बूढ़े और शाला बुड़, मतलब मकान, जैसे धर्मशाला होता है। Yeah, I will share it in the बुड़साला का group. बयान। I will share it in the Pardon? group, sir. Pardon? I will share the अच्छा। text in the group, sir. हाँ yes. ओके सर, सौरभ सिंह जी का सवाल है। I'll state it for you. Thanks for the enlightening session. I am a research scholar at EFL University, working on the Londa Nach performances and its mediations through different Wow. cinematic mediums. As in how the performances got transformed when it was performed on makeshift stages earlier to its present adaptation, Kesari Lal Yadav being the biggest practitioner. I don't have a question as such, but was looking to have your insight in terms of these aspects of performance. थैंक यू। ये क्वेश्चन का जवाब मैं ये कहूँगा कि देखो, अभी आप लोग की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एनएसडी में 2-3 मेरे मित्र हैं अच्छे, राकेश हैं और एक और लड़का है उमेश। वो दोनों लौंडा नाच के ऊपर काम कर रहे हैं। एनएसडी से उनको वो मिला और अभी बहुत अच्छे ढंग से वो लोग प्रस्तुति दे रहे हैं पूरे भारत में। और लौंडा नाच पे आप लोग को जान के बड़ी खुशी होगी कि भिखारी ठाकुर के टीम के एक सदस्य थे रामचंद्र माझी। वो लौंडा नाच के बड़े प्रणेता थे। मैंने उनके ऊपर कविता लिखा जब उनको क्या कहते हैं, उनको बिहार सरकार से बहुत बड़ा सम्मान मिला। बाद में उनको पद्मश्री मिला। जब पद्मश्री मिला तो देखिए, किसी ने भी एक कविता नहीं लिखी, किसी ने 2 लाइन उनके ऊपर नहीं लिखा। वो बिल्कुल दलित परिवार के थे रामचंद्र माझी, और उनको 96 वर्ष की उम्र में, उनको 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में उसको भिखारी ठाकुर अपनी टीम में शामिल किए थे और नाटक मंडली में काम करते थे। तो 96 ईयर की एज में, 96 साल की उम्र में उनको जो पद्मश्री मिला है। भिखारी ठाकुर को नहीं मिला, लेकिन उनके लौंडा को मिला। तो लौंडा नाच को एक सम्मान मिला। तो लौंडा नाच आज इसके ऊपर मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, कभी अगर दीपक जी कहेंगे तो उनसे मिलवा दूंगा। जैनेंद्र दोस्त, वो SPRT पटना में है, लेक्चरर हैं परफॉर्मेंस नाच के। जी। तो वो लौंडा नाच को उनका भी रिसर्च है JNU से। जी। तो उन्होंने एक फिल्म भी बनाया था, नाच लौंडा नाच। और नाच लौंडा नाच, पहले उसका नाम था नाच लौंडा नाच, तो उसको हटा के नाम किया गया क्योंकि उसको गवर्नमेंट से भी कुछ एड मिला था, दूरदर्शन से, तो उसका नाम रखा गया नाच। वो भी रामचंद्र माझी के दर्द, मतलब उनके कितना गरीबी हालत में उनका परिवार था वो थे, और इस नाच प्रथा को बचा कर रखे थे। तो वो जो है उसके ऊपर था। तो चूंकि लौंडा नाच भी एक कास्ट बेस्ड नाच है, मैं ये कह रहा हूँ कोटा। लौंडा नाच में 2 जाति के लोग मिलेंगे। एक हमारे बिहार में एक जाति है पासवान जात है, और दूसरा गोंड जाति। ये जाति में ये नाच की, लौंडा नाच की परंपरा ज्यादा है। जो रिसर्च करने वाले लोग हैं अभी जुड़े होंगे और लौंडा नाच पे काम करते होंगे, वो मेरे बात से एग्री करेंगे। तो समाज का सबसे, एक तरह से कहिए कि हाथी समाज के जो लोग इस नाच को प्रोपेगेट किया। बाद में आज देखिए बहुत लोग नाच कर रहे हैं, पुणे से, वो तो बिल्कुल ऊपर समाज के ऊपरी इलिट समाज से, लेकिन पुणे से एक अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं कार्तिकेय को बात नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन योगदान कर रहा हूँ तो समाज में ये योगदान है। और आज लौंडा नाच एस्टेब्लिश हो गया, इस पर बहुत लोग काम किया, ब्रह्म प्रकाश ने काम किया, बहुत बड़ा काम किया ब्रह्म प्रकाश ने, रिसर्च किया, आज बड़ी जगह पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि चीज को एनालिसिस करते हैं। और ये नाच का फॉर्म हमारे यहाँ लौंडा नाच था, क्योंकि स्वांग में तरह कहीं स्वांग है, इसी तरह आप वहां जाएंगे तो उसको भवई नाच कहते हैं उधर अपना गुजरात में। तो इस तरह लौंडा नाच अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से एस्टेब्लिश। और लौंडा नाच बेसिकली मनोरंजन करने के लिए था, लेकिन भिखारी ठाकुर ने मनोरंजन को एक तरह से माना जाए तो एक सामाजिक चेतना का, मनोरंजन के माध्यम से सामाजिक चेतना का एक मैंने उपयोगी टूल बनाया, मनोरंजन को सामाजिक चेतना में कन्वर्ट कर, ऐसा नहीं। जी, Thank you, sir. And another question is by Neha Bansal ji. She is asking, how can Bhikhari Thakur be called Bertolt Brecht of India? मैंने ब्रेक तो नहीं कहा, मैंने कहा कंपैरेटिव स्टडी के लिए, कंपैरेटिव स्टडीज के आधार पर कहा कि किस तरह से नाटक भिखारी ठाकुर गवर किशोर यहाँ लिख रहे थे। जैसे यहाँ फिल्म बना था एक फूल दो माली, तो यहाँ पे था कि वहां पे आप कभी पढ़िएगा ना तो उनका जो नाटक है, मैंने कॉकेशियन सर्किल जो बताया, उस नाटक में उसी तरह की कहानी है जिस तरह की कहानी यहाँ पे है। और कहानी का जो रूप है और कहानी के जो कथानक है और उनके जो कंटेक्स्ट है वो सिमिलरिटी है। कंपैरेटिव स्टडीज में यही हम तो पढ़ते हैं कि भाई यहाँ और वहाँ क्या चल रहा था, उस भाषा में क्या लिखा जा रहा था, इस भाषा में क्या लिखा। और आप समय देखिए, ब्रेख्त का समय देखिए और भिखारी ठाकुर का समय देखिए। ब्रेख्त एक हाईली इंटेलेक्चुअल है उनकी भाषा में, और हमारी भाषा में भिखारी ठाकुर बिल्कुल गांव गंवई के हैं। उनको अभी उनका इवोल्यूशन ही नहीं हुआ था, कोई जानता भी नहीं था उस समय कि भिखारी ठाकुर कौन है। तो मैंने एक कंपैरेटिव स्टडीज के रूप में एक तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ये कहा है कि ब्रेख्त उधर नाटक लिख रहे थे, इधर भिखारी ठाकुर यही चीज लिख रहे थे। ये बड़ा अपने आप में एक था। ये मैंने ब्रेख्त का अपना तरीका है, वो उस समय सत्ता के खिलाफ लिख रहे थे, या उस समय हिटलर के खिलाफ लिख रहे थे, या वामपंथ के खिलाफ। भिखारी ठाकुर की पूरी जो चिंतन धारा है, वो चिंतन धारा में भिखारी ठाकुर का कोई वामपंथ नहीं है, कोई तरह का वो नहीं है। वो पूरे की तरह एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। वो कोई सत्ता से नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि समाज के वो उस हिस्से से आते हैं जहाँ प्रतिरोध बहुत ज्यादा ये करने की स्थिति में नहीं है। ब्रेख्त जहाँ है वहाँ वो प्रतिरोध करने की स्थिति में है। भिखारी ठाकुर प्रतिरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध का स्वर है। वो स्वर ऐसा है, मैंने आपको बताया कि जैसे होता है ना कि दवाई के ऊपर थोड़ा मीठा लगा के फिर तीखा दवाई दे, प्रतिरोध तो उनका भी है। भिखारी ठाकुर तो प्रतिरोध के स्वर है, उसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन उस प्रतिरोध के स्वर को हमारे यहाँ के जो यूनिट है दबाने का भरसक प्रयत्न किया, उनको सेटिसाइड करने का प्रयत्न किया, उनको साहित्यिक धारा में लाने का प्रयत्न ही नहीं किया। लेकिन जब ऐसे जो मैंने माथुर साहब का नाम लिया, ऐसे विद्वान जब आने लगे, जब उदय नारायण तिवारी लिखने लगे, जब राहुल संस्कृतायन, मनोरंजन प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिन्हा लिखने लगे, तो लोगों को लगने लगा नहीं भाई अच्छा। तो मैंने ब्रेख्त नहीं कहा, पर मैं ये कहा कि हाँ तुलनात्मक अध्ययन के रूप में ब्रेख्त के साथ भिखारी ठाकुर की नाटक का और ब्रेख्त के नाटक की तुलना की जाए। Thank you so much, sir. Does anyone have more questions? He or she can kindly please write in the in-call messages box. If not, Yeah, sir, please go ahead with your question. yeah, sir. Thank you, sir.
किसी भी राइटर को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उस पे लिखा क्या गया है, क्योंकि सोर्स नहीं मिलते हैं। आपने बहुत सारे नाम लिए, राहुल सांकृत्यान, यादव जी, मुन्ना पांडे, राजेंद्र प्रसाद सिंह, रामाशंकर श्रीवास्तव, केदारनाथ, चंद्रशेखर, देव उपाध्याय, परविंदर और माथुर जी। तो ये तो हुआ भारत की तरफ से या बिहार की तरफ से, लेकिन आपने रेमंड विलियम्स लिया, सेमन देबेवा लिया, ब्रेचेट लिया एंड अदर्स। तो ब्रेचेट में अभी आपने कहा कि वो अपने टाइप के इंटेलेक्चुअल थे, हाईली क्लास में रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, तो हम एक लिबरल राइटर के रूप में अगर हम उसको देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो आज तक पढ़े ही नहीं गए या कम काम हुआ है। जैसे कि विजयकांत दुबे, उनका जो काम लिखा हुआ देखा जाए तो इतना है कि आई थिंक 10 किताबें भी कम पड़ जाएं, 25 भी कम पड़ जाएं, लेकिन उन पे आज तक कुछ नहीं है। पहला किताब शायद मैंने ही उन पे लिखा है। तो इस तरह दयाचंद माइना को अगर देखा जाए तो पहला किताब उन पे मैंने ही लिखा है इंग्लिश में, और अभी भिखारी ठाकुर पर भी मैं थोड़ा लिख ही रहा हूँ। तो ये जो लिबरल एंगल है सर रेमंड विलियम्स या ब्रेचेट में जो आपने बताया, तो उसको हम किस तरह से देखें कि भिखारी ठाकुर किस तरह से काम करेंगे? जैसे मैंने आपको उस समय बताया था ना कि अलग अलग, क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि हमेशा जो है समाज में जो हम कहते हैं ना कि एक क्लास का वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है या हेजेमोनी है, तो उस हेजेमोनी को तो डिनाई नहीं करेंगे। तो हमारा समाज जो है, हमारे समाज में तो और भयानक रूप से जो है क्लासिफिकेशन, जिससे हम मुंह नहीं चुरा सकते। तो होता क्या है कि अगर जिसके पास कलम है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास हर व्यवस्थाएं, अब व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, अगर एकेडमिया है, आपको एक जानकारी और दीपक जी दे रहा हूँ, इसी चीज में बताना जरूरी है। भोजपुरी को सबसे पहले एकेडमिक रूप भी एक नाई समाज के व्यक्ति ने ही दिया था, जो बिहार का मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। वो भोजपुरी भाषी नहीं थे, वो मैथिली भाषी। लेकिन उन्होंने भोजपुरी भाषा के महत्व को समझते हुए 1978 सबसे पहले पूरी दुनिया में पहले भोजपुरी अकेडमी की स्थापना बिहार में। तो जब एक चीज को अगर आप स्टैम्प कर देते हैं तो उसका क्या होता है कि फिर उसकी जो है तब धीरे धीरे लोगों का महत्व समझ में आता है। तो उन्होंने एक तरह से भोजपुरी के संघर्ष को, भिखारी ठाकुर के संघर्ष को कर्पूरी ठाकुर ने आगे बढ़ाया और उसको एक जगह मुकाम दी, एक एकेडमी को। दूसरा कोई तो नहीं दिया, दूसरा कोई तो उसको जन्म नहीं दिया। ये किताबें सब फेंकी हुई थी, लेकिन वीरेंद्र नारायण यादव आते हैं और इनके सारे किताबों को उठा के और फिर एक रचनावली का रूप देते हैं, और एक अच्छे, आपके पास भी ये रचनावली होगा बिहार राष्ट्र, जी जी है मेरे पास। इस तरह से उसको ढंग से लाके और चीजों को क्रोनोलॉजिकल वे में सजा के और आपको पुस्तक का रूप देते हैं। जी तो वो वीरेंद्र नारायण यादव अगर नहीं होते तो हमारे पास आज भिखारी ठाकुर की रचनावली नहीं होती सर। जी जी। तो हमें ये जरूरी है कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जाए, उस व्यक्ति की चीजों का संरक्षण नहीं किया जाए। उसके, मैंने आपको पहले बोला, किसी प्रतिभा के ऊपर बात ही नहीं करिए, आप मेरी कविताओं पे बात ही नहीं कीजिए। तो मेरे कविता चलिए आज नहीं बात हो रही, कुछ दिन बाद भिखारी ठाकुर ने भी कहा था कि आज थोड़ा मेरे लोग जाने हैं, आज बाद में चल के और लोग हमें जानेंगे, है ना। अभी नाम भइल बात हो रहा, अभी तो नाम थोड़ा भइल बा, अभी थोड़ा नाम हुआ है, फिर बाद में लोग जाएंगे और विद्वान गुणी हमारे कविताओं को गाएंगे। तो ये इन्होंने पहले कह दिया था कि भाई दीपक जी आएंगे, हमारे रचनावली का अनुवाद करेंगे, तो पहले से मान। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप किसी विद्वान के ऊपर नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे, कहाँ से चीजें उपलब्ध, लोगों ने लिखा पढ़ा। जी एक सर छोटा सा और क्वेश्चन है। अगर मैं
साहित्य के किसी भी राइटर को देखता हूँ, चाहे प्रेमचंद हो या फिर विलियम शेक्सपियर हो, सैमुअल जॉनसन हो, या फिर जो भी राइटर हम ले सकते हैं, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से या आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे। इवन ब्रेचेट को भी हम ले सकते हैं, सिमन द बेवा को ले सकते हैं। भारत के केस में सोशलिज्म हो सकता है, मार्क्सिज्म हो सकता है, हिंदुइज्म हो सकता है, नेशनलिज्म, गांधीज्म, जो भी आप मान सकते हैं। तो अगर मैं कुछ राइटर्स को पढ़ता हूँ तो उसमें दिखता है कि वो किसी आइडियोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम भिखारी ठाकुर को कहाँ देख सकते हैं सर? तो उनको पॉजिटिव लिबरल में देख। ओके सर। और दूसरी बात, आपको पता है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भिखारी ठाकुर नाटक कर रहे तो उस समय हमारे क्षेत्र में हाशिए के लोगों को राजनीति में बहुत ज्यादा स्थान है। उनको माना ही नहीं जाता था कि राजनीति, बहुत कम लोग थे, आप देखिए, 1-2 लोग थे, 4 लोग। ये तो बाद में जब कर्पूरी ठाकुर और ये लोग आते हैं, जनता पार्टी की सरकार वगैरह आती है, तो कि कुछ लोग आ गए राजनीति में, और 90 के बाद पूरा का पैराडिज्म शिफ्ट कर दिया और वहाँ पे लोग जो है अब ओबीसी राजनीति को बढ़ गया, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का सरकार कहा जाता है। जैसे कि हम लोग एक स्तर पे रखते हैं, विषय रखते हैं कि हाँ ये ह्यूमनिज्म है, ये वामपंथ है, ये पंथ है, ये पंथ है, ये कांग्रेस है, ये राइट है, ये। तो ये सोशल जस्टिस के अगर मुझे लगता है कि उस समय अगर बात आती तो ये सोशल जस्टिस के अंदर आते। लेकिन मैं इनको पॉजिटिव लिबरल ही मानता हूँ कि ये ठीक है, अपना बेचारे काम कर रहे थे, क्योंकि ये उतना पढ़े लिखे तो थे नहीं, जितनी समझ थी, समझ में वो अपना ठीक बहुत महत्वपूर्ण काम थे, होता नहीं, बहुत महत्वपूर्ण। जी दीपक जी, थैंक यू सर। मेरी तरफ से 2 ही प्रश्न थे और उसका जवाब मुझे मिल चुका है सर। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत। मैंने कोशिश की है कि आप सब लोग को जितनी मेरी समझ है जवाब दे सकूं, और भी आगे कभी सेशन होगा तो और बात होंगी। लेकिन भिखारी ठाकुर जो है वो हमेशा उसके लिए प्रासंगिक रहेंगे, और आप जो काम कर रहे हैं वो काम मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एरेना में जो चीज आज हम सेक्स की बात कर रहे हैं, दूसरे हिस्से में भिखारी ठाकुर की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप जो है प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया रागनी, और बहुत शुक्रिया दीपक जी, जिनके साथ मेरे साथ जुड़े हैं। सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हमने बहुत सीखा आज के लेक्चर में, और हम जरूर ये समझते हैं कि अभी जो लोक शैली है, या एज अ फोकलोरिस्ट भी अगर हम भिखारी ठाकुर जी को मानते हैं, तो अभी उन पर और काम हो सकता है। तो हम लोग अगर कुछ ऐसा काम करें जिससे भिखारी ठाकुर जी की रचनाएं जो है जन जन तक पहुंच सके, उन्हें हम समझ सके कि उनकी रचनाएं जो है सिर्फ बिहार में ही सीमित नहीं, उनके जो टॉपिक्स हैं वो इंडियन ट्रेडिशन को बिल्कुल कोर तक टच करते हैं। और हम इसीलिए आज के जो सेशन से हम यही सीख लेते हैं, जो आपसे ही हम ले रहे हैं सर, कि एज अ फोकलोरिस्ट और इवन एज एन इंडियन ट्रेडिशनल राइटर, तो हमें जो है इनका कंपैरेटिव स्टडी भी जो है हम कर सकते हैं। बर्टोल्ट ब्रेक्ट हो गए, या इवन इनको विलियम शेक्सपियर की भी उपाधि दी जाती है, बट मेरे ख्याल से हमें कुछ ऐसा टाइटल देने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में ही एक महासागर है और कि उन पर अध्ययन हम जितना करें शायद हमें कम ही लगे। और उनकी जो अभी भी जो कुछ ऐसे उनके विषय हैं जो उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णित किए हैं, उनको हम कहीं ना कहीं आज भी जो है वो हम उनसे रिलेटेड फील करते हैं। So I'm very thankful to you, Dr. Santosh sir, and Dr. Deepak, that all of us got an opportunity to listen to you today, and we are definitely going to take these lessons with us and we'll work on them for sure. So thanks a lot, sir, and Deepak sir. So थैंक यू रागनी, थैंक यू दीपक, और बहुत बहुत धन्यवाद सारे मित्र जो जुड़े हुए हैं, सबका मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू संतोष सर। विशेष रूप से आभारी हूँ। थैंक यू संतोष सर, आपने बिजी टाइम में से बच्चों के एडमिशन चले हैं, लेकिन हमें आपने टाइम दिया, तो और आप बहुत बिजी हैं, कल आपका एक बड़ा प्रोग्राम भी है, उसके बावजूद भी आपने आज आपने
के समय पे रखा भिखारी ठाकुर को, एक्चुअली हम आंदोलन में भी उनको लेके जाते हैं। तो इसीलिए रखा उनकी था एक बड़ी सर ये। तस्वीर, जी जी हाँ एक बड़ी तस्वीर रखी है उनकी, जी, मैं जी। आंदोलन में लेके जाता हूँ, जी, क्योंकि वो जी। पुरोधा है हमारे, जी जी तो उनको लेके चलना बहुत जरूरी है। उनको भी डाउन साइज करने का आजकल काम चल रहा है जी 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 कि आजकल कहते हैं कि दो महान व्यक्ति जी जी एक ही क्षेत्र, लेकिन उसको ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। जी। दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों के अपने अपने प्रॉपर्टीज हैं, दोनों के अपने अपने रचना धर्मिता है, उनके कंट्रीब्यूशन हैं। तो जैसे हमारे यहाँ एक महेंद्र मिसिर होते थे, तो जी। महेंद्र मिसिर के पूर्वी को जनक कहते हैं उनको, उसी तरह जैसे इनको विदेशिया का कहते हैं। तो आज चला है कि भाई ये कैसे भिखारी ठाकुर कैसे, पहले तो ऊपर में महेंद्र मिसिर आने चाहिए। जी तो जी एक फिक्सियस स्टेटमेंट भी चल रहा है कि भिखारी ठाकुर चेला थे महेंद्र मिसिर के, लेकिन ये गलत एक प्रोपेगेट किया जा रहा है। जी इसके अंदर भी कुछ विद्वेष है, कास्टिस्ट जी। विद्वेष। महेंद्र मिश्र तो पे ऐसा कुछ नहीं। जी, महेंद्र मिश्र पे बलभद्र सिंह ने हमारा अच्छा ज्ञान बढ़ाया था सर। लेकिन उसमें ये जो स्टेटमेंट है ना सर, जी जी कि भी महेंद्र मिसिर और भिखारी ठाकुर का कहीं भेंट ही नहीं है। जी जी लेकिन ये लोग अभी इधर 5-7 साल से एक नैरेटिव शुरू किए हुए हैं, जी जी तो बताते हैं कि भिखारी ठाकुर चेला है, जी जबकि भिखारी ठाकुर ने अपने मित्र रामानंद सिंह का भी नाम लिखा है चौवर्णी पद में, जी जी अपने गुरु बनिया का भी नाम लिखा है। तो अगर वो समाज, जिस समाज में अगर भिखारी ठाकुर जी रहे थे, अगर ये अगर शिष्य रहते महेंद्र मिसिर थे, तो आप क्या सोचते हैं वो एक बार भी उनको अपने गुरु का नाम नहीं दिया होता? जी जी ट्रू। जिससे कखा सीखा उसका तो नाम लिख दिया जी जी कि मैं फलाने बनिया से कखा सीखा। और यह बाद में अपने दोस्त रामानंद सिंह के जो है क्षत्रिय हैं उनके ऊपर भी लिखा, 4 वर्णों के ऊपर के लिखा, एक चौवर्णी पद है। जी जी तो उन्होंने सबका नाम लिखा है जो भी उनके जीवन में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतने बड़े माने कि समाज में उसमें बोलबाला था ब्राह्मणों का भी, तो कैसे उनको छोड़ सकते थे? एक नाई की औकात थी क्या जी कि जी अपने गुरु का नाम नहीं लिखा और भी भिखारी ठाकुर? जी तो ये सब जो फर्जी एक तरह से नैरेटिव चलाया जा रहा है, मैं सोचता हूँ कि दो महान आदमी होते हैं, अगर उनमें रचना में समानता है तब तो कहा जाएगा, अगर समानता है ही नहीं तो वो कैसा गुरु जो चेला पे कोई प्रभाव ही नहीं रखा। जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू रागनी मैम, Thank you, sir. Thanks a lot. जल्दी फिर मुलाकात होगी हम लोग को फिजिकल।